हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th साउथ दिल्ली मर्डर, इसका जो राइटर है तबीस खैर जी हैं, इसका हम लोग हिंदी सारांश देखेंगे और सारे चैप्टर के बाद। साउथ दिल्ली मर्डर पोयम समरी। सबसे पहले अगर बात करें साउथ दिल्ली मर्डर का, तो साउथ दिल्ली मर्डर रिटन बाय तबीस खैर। तबीस खैर स्टडीड अप टू एमए इन गया से उन्होंने एमए किया है। ही इज फैनेड टू सी डैट बिहार एंड बिहारीज नो लॉन्गर इंजॉय ए गुड रेपुटेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Biharis are honest and hard-working people, but many poor Biharis work as domestic help. In some cases, it was found that Bihari servants killed their employer, made away with their valuables. The act of a few them brought a bad name to Bihar and Biharis whenever an incident of murder or robbery is committed. The finger of suspension is pointed at the Bihari servant without any proof or investigation. This prejudice prevails in the Delhi people and police alike. South Delhi murder highlighted this attitude of the police of the people. An old couple lived alone in a flat. Their sons were in America. They did their duty to their parents just by sending them valuable parents. One day, a neighbor saw a red fluid spilled from behind the closed door of the old couple. For 3 days, he believed that the red fluid was red ink or nail polish. But then she noticed that fluid had dried, the flies buried over it. Then she realized it was blood. She rang up the police. She told her neighbors, Mrs. Guha, about the old couple servant Syam. He was a Bihari. He looked innocent. She found it hard to believe that such a innocent boy could have murdered the old couple. But appearance could be deceptive. A police officer came with 2 constables. They broke open the door and went in. The old man had been stabbed and the old woman been killed with iron rods. It was a neat job, as if the operation was done by professionals. The way the couple had been killed, the police officer could immediately tell that it was the job of Nepali boy or a Bihari chokra. It was presumed that in the dead of the night, when the streets of the Delhi are deserted and quiet, Syam, accompanied with some Syam, would have unlocked the door for them. They killed the couple and made away with the valuables. Almost every valuable thing was missing, but they had left the laptop behind. Probably the illiterate Bihari did not know anything about computer. They did not know that laptop was also valuable. इसका अगर हिंदी सारांश देखें तो एक वृद्ध संपत्ति एक फ्लैट में अकेले रहते थे। उनके बेटे अमेरिका में थे। वे अपना कर्तव्य मूल्यवान उपहार भेजकर पूरा करते थे। एक दिन एक पड़ोसन ने देखा कि लाल तरल द्रव्य बंद दरवाजे के पीछे से बह कर आया था। 3 दिन तक वह मानती कि वो लाल स्याही या नाखून पॉलिश थी। फिर उसे ध्यान दिया कि तरल द्रव्य सूख गया था और मक्खियाँ उस पर भिनभिना रही थी। तब उसे आभास हुआ कि वह खून था। उसने पुलिस को टेलीफोन किया। उसने अपनी पड़ोसन मिसेज गुहा को वृद्ध संपत्ति के नौकर श्याम के बारे में बताया। वो बिहारी था। वो भोला भाला प्रतीत होता था। उसे विश्वास न हो रहा था कि ऐसा भोला भाला लड़का वृद्ध दंपत्ति की हत्या कर सकता था, परंतु सूरत से धोखा लग सकता है। एक पुलिस अधिकारी 2 सिपाहियों के साथ आया। वे द्वार तोड़कर अंदर गए। वृद्ध आदमी की हत्या छुरा घोंपकर कर दी गई थी। वृद्ध की हत्या लोहे की सलाखों से की गई थी। यह काम बड़ी सफाई से किया गया था, जैसे किसी पेशेवर का काम हो। जिस प्रकार हत्या की गई थी, पुलिस अधिकारी ने तुरंत बता दिया कि यह किसी नेपाली या बिहारी छोकरे का काम है। माना यह गया कि सुनसान रात में जब दिल्ली की सड़कें खाली व शांत होती है, श्याम के साथी आए होंगे। श्याम ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया होगा। फिर उन्होंने दंपत्ति की हत्या करके मूल्यवान वस्तुएं लेकर चंपत हो गए। लगभग सभी मूल्यवान वस्तुएं नजरद थी, परंतु वे लैपटॉप छोड़ गए थे। संभवतः अनपढ़ बिहारियों को कंप्यूटरों के बारे में कुछ पता न था। उन्होंने पता न था कि लैपटॉप ही मूल्यवान। श्याम को पकड़ना कठिन ना था। उसको पता लिखा हुआ था और बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। पुलिस को एक फिल्म से उसको फोटो भी मिल गया था, जिसमें वह एक पार्टी में ट्रे लिए हुए था। जब पुलिस ने श्याम को पकड़ा, उसके पास केवल 50 रुपये तथा एक साड़ी थी जो उसने अपने माँ के लिए खरीदी थी। यह एक वर्णनात्मक कविता है जो अंग्रेजी के उल्लेखनीय भारतीय कवि तबीस खैर के द्वारा लिखा गया है। इन पंक्तियों में कवि साउथ दिल्ली के फ्लैट में रहने वाले बड़े दंपत्ति की हत्या के बारे में कहता है। उसे फ्लैट में रहने वाले एक बेटी असर के पता चला कि वह हत्या हुआ है। यह बूढ़ी औरत है। उसने सबसे पहले गलती जून के निशान को लाल स्याही या नेल पॉलिश का धब्बा समझा। बाद में मक्खियों के झुंड दर फ्लैट के दरवाजे से खून के निशान आभास हुआ।
बूढ़े कत्ल किए गए दंपत्ति का एक नौकर लड़का है। आधी रन में नौकर के द्वारा फ्लैट का दरवाज़ा खोला गया। एक बूढ़ी औरत जब बगल के फ्लैट में रहती थी और समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। उसने उस फ्लैट की एक दूसरी औरत मिसेज गुहा का बताया। वो बेहताशा अंदाज में बोली, 26 चाकुओं के जख्म को सहन करने मकतूल के लिए सचमुच में कठिन काम था। ऐसे लोगों के प्रति इस भयानक अपराध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह अपराध दंपत्ति के नौकर द्वारा किया गया है, जिसने बूढ़े दंपत्ति की हत्या डाकुओं द्वारा उन्हीं के फ्लैट में करा दी गई है। यह सुनकर श्रीमती गुहा एक अन्य पड़ोसन की आश्चर्य से भर गई। इसी बीच एक पुलिस अफसर तथा 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। हत्या के साक्ष्य की जांच कर अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए पुलिस अफसर कमरे से बाहर आए। पुलिस अफसर ना जानकारी चाहा कि नौकरी करने वाला लड़का नेपाली या बिहारी छोकरा था। पुलिस के अनुसार दंपत्ति की हत्या के सूत्र बिल्कुल स्पष्ट थे। चाकू मारकर हत्या करना हमेशा बाहरी लोगों की पसंद होती है। दंपत्ति की हत्या निश्चित रूप से बाहरी लोगों का काम है। हत्यारे ने डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला छोटा तेज चाकू निकाला। वह आधी रात का समय था। रात में बिल्कुल खामोशी और कोहरा था। 3 बजे रात या उससे पहले अथवा बाद कभी कभी आने वाले ट्रक के पीछे रोशनी धुंधले दिखाई देती, पीले रंगों में लड़खड़ाती नजर आती। कभी कभी रात की खामोशी भौंकने वाली गली के कुत्ते के द्वारा भंग हो जाया करती थी। श्याम, एक लड़का नौकर ने चुपके से फ्लैट के दरवाजा को डाकुओं को प्रवेश के लिए आधी रात में खोल दिया। वे लोग उस फ्लैट के सामानों को लूटने आए। श्याम ने डाकुओं के साथ साजिश रचा। डाकू लोग चाकू और छड़ के साथ फ्लैट में प्रवेश किया। उन लोगों ने बूढ़े दंपत्ति की बुरी तरह से हत्या कर दिया। बूढ़े आदमी को पीट पीट कर मार डाला गया और उसकी पत्नी के बाद में छुरा मारकर हत्या कर दिया गया। पुलिस अफसर ने इस दंपत्ति के रिश्तेदार को चोरी किए गए सामानों की एक सूची तैयार करने को कहा। चोरों ने एक लैपटॉप कंप्यूटर को छोड़कर 2 टीवी सेट, रेडियो, कीमती बनारसी साड़ियाँ, कीमती जेवरात और नकद राशि इत्यादि चुराया था। इस लैपटॉप अथवा कंप्यूटर को या तो भय से उन्होंने छोड़ दिया था, कीमत में कमी के कारण छोड़ दिया था। इस पर पुलिस अफसर ने मजाक से कहा कि बिहारी छोकरों को कंप्यूटर से लेना देना नहीं था। उस संदेहशील लड़के को पार्टियों में ट्रे ढोते हुए देखा गया था तो उसका पता नोट कर लिया गया था। इस तरह पुलिस के लिए उस बिहारी छोकरे श्याम को उसके गांव में ढूंढ लेना आसान था। श्याम को गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पात्र मात्र 50 रुपये और माँ के लिए एक साड़ी थी। ये था हम लोग का हिंदी सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।